Let us start preparing this table. एक काम करो, चलो prepare this table. Give the heading statement showing. Point number 1. We will solve this in 3 parts. Once this table is over, then we will go to, in fact we will solve this in 2 parts. Part number 1, write down statement showing calculation of expected total stock out cost per annum. Statement showing calculation of expected total stock out cost per annum. Okay, prepare this 5 column table and copy whatever is written. How many safety stock levels we have already considered till here? दो ही हुआ ना, एक 100 और एक 80. चलो नेक्स्ट कौन सा? 50. So in the same table we will continue. Same table. Next safety stock level is 50. दिस फर्स्ट हेडिंग में हम लोग ने सेफ्टी स्टॉक का यूनिट्स लिखा है. सेकंड में हमने स्टॉक आउट का यूनिट्स लिखा है. थर्ड में वी आर सपोज टू कैलकुलेट स्टॉक आउट कॉस्ट. तो स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी कॉलम नंबर 2, मतलब स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू 150. सो जस्ट मल्टीप्लाई 50 इनटू 150, 7,500. 30 into 150, 4,500. And rest all cases में it will be 0 because there is no stock out. And इसको we will multiply by probability. 7,500 into 0.02, 4,500 into 0.05, okay, what is the total? Chalo, after 50, which is the next safety stock level that we should consider, 20. बोलो कंपनी के पास कितना यूनिट्स है? 500. Plus company maintains safety stock of, so now company is having 520 और कस्टमर ने आके 600 मांगा. तो पहले जो 100 का स्टॉक आउट हो रहा था वो अब कितना हो जाएगा? 80. लाइकवाइज पहले जो 80 का स्टॉक आउट होता था वो अब कितना हो जाएगा? 60. पहले जो 50 का स्टॉक आउट हो रहा था वो अब कितना हो जाएगा? 30. एंड देन आगे 0. Probability will remain same.
multiply 80 into 150, 60 into 150, 30 into 150, multiply what is the total? One one four zero. This is safety stock of 20 units. बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? Safety stock of 10 units. You may have to extend the table to next page. बोलो तो पहले जो 100 का स्टॉक आउट हो रहा था वो अब कितना हो जाएगा? 90. नेक्स्ट पहले जो 80 का स्टॉक आउट रहा था वो 70. पहले जो 50 का स्टॉक आउट रहा था नाउ इट विल बिकम 40. पहले का जो 20 स्टॉक आउट रहा था नाउ इट विल बिकम 10 एंड लास्ट टू केसेस में 0. अगेन प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम. Now we will just multiply 90 into 150, 70 into 150, 40 into 150, and 10 into 150. चलो नेक्स्ट. यहां पे कितना आ रहा है? 2, 70, 5, 25, 600, 300, 16. नाउ व्हाट इज द लास्ट लेवल जिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कंपनी डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी स्टॉक इज 0. Sure, 0 पे do it on your own. Add safety stock 0 units. मतलब company does not maintain safety stock. So stock out units will be same what is given in the question, 100
80 50 20 10 0, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा। मल्टीप्लाई स्टॉक आउट यूनिट्स बाय 150, थ्री हंड्रेड 600 750 what is the total? चलो नाउ दिस वाज अवर फर्स्ट टेबल। ये फर्स्ट टेबल में हम लोग ने एक ही चीज कैलकुलेट किया। व्हाट इज दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज एक्सपेक्टेड टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम। दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट में एक्सपेक्टेड टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट में विच अदर कॉस्ट वी आर गोइंग टू ऐड। हाँ, तो वो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट टेबल में करेंगे। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, statement showing calculation of total relevant cost per annum। Okay, prepare this table। See observation. What is number 1 of this table? Safety stock। जैसे जैसे सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स कम हो रहा है 100 80 50 20 10 0, व्हाट इज हैपनिंग? Expected total stock out cost is increasing because if safety stock is less, risk of stock out is more, and hence safe stock out cost will also be more, which is another cost जो हमारे लिए relevant है। So right, serial number 3, total carrying cost per annum। Okay, what is the carrying cost per unit? 50। It is serial number 1 into rupees 50। जितना यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे वो कैरी करना पड़ेगा। कंपनी विल हैव टू इनकर कैरिंग कॉस्ट। सो 100 इंटू 50, 80 इंटू 50, 50 इंटू 50, 20 into 50, 100 into 50, and 0 into 50. So you can see as safety stock units go on reducing, total carrying cost is also reducing। And last में
Total relevant cost will be serial number what plus what? Serial number 2 plus 3. Sure. Go on adding. 5,000. 4060. 2875. Which safety stock level we will select? Why? Total relevant cost वहाँ पे कम है, least है. Write down. Total relevant cost is least at total relevant cost is least, or you can write minimum also, least at 20 units. Next line, therefore, optimum safety stock level. Therefore, optimum safety stock level is equal to 20 units. Okay, now that is end of this question. That is question number 13. Now, next area, if you remember, we can say कि हम लोग ने second part of chapter complete कर लिया. First part of chapter क्या था? Where we studied how to calculate EOQ. EOQ is answer to which question? How much raw material to purchase? Of course, at a time. देन हम लोग ने ROL, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये सब स्टॉक लेवल्स पढ़े. दैट इज मेजॉरिटीली डिस्कसिंग द एरिया अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और यू कैन से व्हेन टू ऑर्डर. तो ये सब हमने ये पर्टिकुलर चैप्टर के एरिया में कवर किया है. नाउ वी गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में एक एरिया है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स and valuation of material issues. एक होता है receipts and एक होता है issues. If you remember, at foundation level, you must have done in the chapter inventories. Inventories में you used to prepare one stores ledger करके. Stores ledger में receipts, issues, balance. You used to call it as stock ledger. हम लोग यहाँ पे उसको stores ledger बुलाएंगे. तो वो रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस में जो हम लोग बना रहे हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज, जिसके लिए तुम लोग को मेथड्स फॉलो करना पड़ता है. व्हाट आर द मेथड्स दैट यू मे हैव टू फॉलो? फीफो और लीफो और वेटेड एवरेज एंड सो ऑन. बट राइट नाउ हम लोग एक छोटा सा एरिया डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स. रिसीट्स मतलब वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स मतलब if you read the second line, इसमें you are ascertaining what? You are ascertaining the cost of material that is purchase. मतलब मैं जब मटेरियल परचेस करता हूं तो मेरे को उसका कॉस्ट एसरटेन करना है. तो सम में फेल, उसमें इतना क्या बड़ा बात है, ये तो बहुत ही सिंपल है. आई विल टेक वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट कि ये पर्टिकुलर एरिया में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो से फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेस किया. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल is equal to, say for example, 12,000 units. This is purchase of raw material. कितना है? 12,000 units. Okay.
परचेज कॉस्ट, आई होप सबको पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का सिंपल मतलब क्या है कि हम लोग ने ये 12,000 यूनिट्स के लिए सप्लायर को कितना पे किया, यस और नो। तो हम लोग ने सप्लायर को, से फॉर एग्जांपल हम लोग ने सप्लायर को पे किया 22,50,000, सप्लायर को वी हैव पेड 22,50,000। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल कैन बी कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब कॉस्ट करेंगे हम लोग। तो से सब फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 54,000, बराबर है, ओके। नेक्स्ट तुमको दिया है something called as which loss? Normal loss, say for example they are giving you as 4%। यहाँ पे लॉस जनरली, नॉर्मल लॉस जनरली परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड रहेगा। वो परसेंटेज में क्यों एक्सप्रेस्ड रहेगा वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मल लॉस जनरली अगर दिया रहेगा तो किस में दिया रहेगा, परसेंटेज में। और आगे बोला है एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड इज 11,380 यूनिट्स। पहले एग्जांपल समझो। फर्स्ट पॉइंट तुमको क्या दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव परचेस्ड, 12,000 यूनिट्स यू हैव परचेस्ड। परचेस कॉस्ट दिया हुआ है तुमको 22,50,000, मतलब तुमने सप्लायर को 22,50,000 पे किया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 54,000, ट्रांसपोर्टेशन में सब कुछ आ गया, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा। नॉर्मल लॉस इज 4%, बट एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड इज 11,380। सपोज फॉर एग्जांपल तुमको बोला जाता है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट आर यू सपोज टू कैलकुलेट, कॉस्ट पर यूनिट। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। थोड़ी देर पहले यू टोल्ड मी हम लोग ने प्रिपेयर किया हुआ है, क्या प्रिपेयर किया हुआ है, ऐसा एक स्टोर्स या स्टॉक लेजर प्रिपेयर किया हुआ है। रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस, बरोबर है। अब ये रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस में क्या क्या होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। वैसे ही इश्यूज में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इसमें। तो यहां पे जब तुम रेट में, तो तुमको कोई ना कोई रेट तो एंटर करना पड़ेगा कि नहीं। दैट इज व्हाई आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। यस और नो। चलो नाउ मुझे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास से चाहिए कि अगर मेरे को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, कैन यू टेल मी कॉस्ट पर यूनिट सिंपल तरीका। कैन आई से इट विल बी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो पहले न्यूमरेटर में बात करना है, तो वेरी सिंपल, हाउ मच विल बी द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, विल यू टेक परचेज कॉस्ट। अरे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढ रहा हूं, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब सिंपल लैंग्वेज में मेरे को रॉ मटेरियल पर यूनिट कितने में पड़ा ये मुझे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कहना है से न्यूमरेटर में 22,50,000 तो आएगा ही। हाँ तो बोलो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 22,50,000। विल यू ऐड ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा। यस, वो भी तो तुम ऐड करोगे बिकॉज इज एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो मेरे लिए कॉस्ट हो गया, वो मैं इसको ऐड करूंगा। तो ये दोनों का टोटल कितना है, 23,04,000। 23,04,000। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको एक नाम रख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टोटल परचेस कॉस्ट। टोटल परचेस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ गया, परचेस कॉस्ट भी आ गया, फ्रेट आ गया, कैरेज आ गया एक्सेट्रा। अच्छा ये परचेस कॉस्ट के अंदर क्या लेने का क्या नहीं लेने का ये थोड़ा बहुत हम लोग बात कर चुके हैं। विल यू ऐड एनी टैक्स, डिपेंड्स। अगर वो टैक्स का तुमको क्रेडिट मिल रहा है, रिफंड मिल रहा है, एडजस्ट हो रहा है, तो वो आपका कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सपोज जीएसटी, नॉर्मली हम लोग को जीएसटी के बारे में ही पूछते हैं, तो जीएसटी का अगर मुझे क्रेडिट मिल रहा है तो इज इट माय कॉस्ट,
नो, तो इज इट, इफ मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो इज इट माय कॉस्ट, यस, तो मैं उसको ऐड करूंगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लो चलो जीएसटी है लेकिन मेरे को उसका क्रेडिट मिल रहा है, इसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये हो गया 23,04,000। तो ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है। इनफैक्ट अगर तुम पढ़ोगे तो कौन से आइटम्स को लेना चाहिए, कौन से आइटम्स को नहीं लेना चाहिए, उसका पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से इसको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। इंस्टीट्यूट इसको थियरी एग्जाम में पूछता है या कभी कभी उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी डाल के पूछता है। सो ये सबको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द डिस्काउंट इज विच डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट को आप डिडक्ट करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेज कॉस्ट और नॉट? यस, तो लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस। अगर इनवॉइस में से डिडक्ट करके नहीं बताया तो तुम उसको डिडक्ट करोगे। क्या तुम लोग क्वांटिटी डिस्काउंट को भी डिडक्ट करोगे? सिंपल है, तो उसको तुम कंसीडर मतलब डिडक्ट करोगे बेसिकली। एनीवेज वी विल कम बैक टू दिस। राइट नाउ हमारा डिस्कशन पॉइंट वो नहीं है, वो पॉइंट या वो जो टेबल है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। एनीवेज बताओ, अब मेरे को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो मेरे को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा। ओके, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स से मैं डिवाइड करूंगा? यहाँ पे दो ही यूनिट्स है, एक है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 यूनिट्स एंड दूसरा इज एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड 11,380। सो ये दोनों में से कौन सा क्वांटिटी से मैं डिवाइड करूंगा? अच्छा, बिफोर दैट बीच में वो लोग ने समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस दिया है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रिगार्डिंग नॉर्मल लॉस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस नॉर्मल लॉस? मैंने एक वर्ड यूज किया था उसके लिए, नॉर्मल लॉस के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था एक्सपेक्टेड लॉस। इट इज बाउंड टू हैपन, मतलब मुझे वो पता है कि नहीं पता है, पता है कि वो होने ही वाला है। इट इज नॉर्मल लॉस, इट इज बाउंड टू हैपन। सो ऐसा बहुत सारा केसेस है इनफैक्ट इन योर रियल लाइफ ऑल्सो कि तुम कुछ परचेस करते हो तो उसमें 100% क्वांटिटी तुमको यूज करने को नहीं मिलता है, उसमें से देयर इज सर्टन loss which is expected, and because it is your expectation it is given in terms of percentage. Are you getting what I'm saying? तो चलो अभी मुझे कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है, तो मैं कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढूं? हाउ विल आई फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट? न्यूमरेटर में तो 23,04,000 आएगा, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। एक काम करो, पहले मेरे को बताओ हाउ मच इज परचेस क्वांटिटी, of course in units? 12,000, ठीक है चलो। हाउ मच इज नॉर्मल लॉस? ये नॉर्मल लॉस को मैं 12,000 में क्या करूं, ऐड करूं कि लेस करूं? क्यों? इट इज नॉर्मल लॉस, इट इज, और इट कैनॉट बी यूज ना, मैं उसको यूज ही नहीं कर सकता हूं, मेरे पास वो आया ही नहीं है, वो यूनिट्स मेरे को मिला ही नहीं है। सो 12,000 इंटू 4% कितना होता है? 480। चलो माइनस करो, 12,000 माइनस 480, 11,520। ये 11,520 को मैं एक नाम रखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज विच क्वांटिटी? एक्सपेक्टेड क्वांटिटी। आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट 11,520। देखो अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल बॉक्सेस में आएगा, वो बॉक्सेस को जब मैं खोलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि थोड़ा बहुत यूनिट्स डैमेज हो गया, खराब हो गया, उसमें से मैं जो डैमेज है वो निकाल रहा हूं, तो उसमें से मैं एक निकाला, दो निकाला, तीन निकाला, 480 यूनिट्स मैंने निकाल दिया। तो वॉज दैट 480 यूनिट्स एक्सपेक्टेड कि अनएक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड। तो आई विल बिहेव नॉर्मल कि आई विल बिहेव एबनॉर्मल? नॉर्मल बिहेव करूंगा मैं, ठीक है ये तो मैं एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर तुम आगे पढ़ोगे, एक्चुअल क्वांटिटी कितना मिला है? 11,380, उससे भी कम मिला है। कितना है डिफरेंस? व्हाट इज दिस 140? एबनॉर्मल लॉस। मतलब जैसे 480 के ऊपर लॉस हुआ तो नाउ आई विल बिहेव एबनॉर्मल। अब मुझे दुख होगा कि भाई ये ज्यादा यूनिट्स लॉस हो गया है। दिस इज कॉल्ड एज विच लॉस? एबनॉर्मल लॉस। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ एनी एबनॉर्मल लॉस?
लॉस बाय फायर, तो एब नॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल इज वाकई एब नॉर्मल, मतलब ऐसा कौन सा फायर है जो सिर्फ 140 यूनिट को पकड़ा है। ये एक मिनट गो स्लो। कैंडल गिर गया, उसको लॉस बाय फायर बोलते हैं। थेफ्ट हो गया, मतलब चोर सिर्फ 140 यूनिट्स ही उठा के भाग सका। ओके, लॉस बाय फायर तुम्हारा मिस्टेक नहीं है, तुमको है ना पहले से दिमाग में डाला गया है कि लॉस बाय फायर ने लॉस बाय थेफ्ट ही एबनॉर्मल होता है। लिसन टू माय नेक्स्ट स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस इज ओनली एक्सपेक्टेशन डिफरेंस। नहीं समझ में है ना तुमको, मेरा एक्सपेक्टेशन डिफरेंस है ये। मैं जब डब्बा खोल रहा हूं मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि 480 खराब कंडीशन में निकलेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खाली 480 खराब कंडीशन में निकलेगा, लेकिन एक्चुअली जब मैंने डब्बा खोला और मैंने सब खराब यूनिट साइड में निकाले तो 480 प्लस 620 यूनिट्स खराब निकला। वो यूनिट पे लिखा रहेगा मैं नॉर्मल है, मैं एबनॉर्मल वाला है। कैन यू आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट देम फिजिकली कि भाई ये नॉर्मल लग रहा है, नहीं ये एबनॉर्मल लग रहा है। क्या लॉस बाय फायर ने लॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट? प्रोबेबिलिटी नहीं समझता है तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी? लॉस बाय फायर, ट्रक में गुड्स आ रहा है खाली 140, पूरा ट्रक को आग लग गया तो समझ सकता है, तुम खाली 140 यूनिट को आग लगाते हैं। चलो लॉस बाय थेफ्ट में मान सकता हूं, क्योंकि कैसा होता है मालूम है, बिकॉज माय फादर वाज इन ट्रांसपोर्ट, आई नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है मालूम है, ड्राइवर्स लोग क्या करते, फॉर एग्जांपल व्हीट बैग्स एक्सेट्रा होता है ना, तो व्हीट बैग्स और वो सब जब पोस्ट ट्रांसपोर्ट होता है पंजाब से, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, बीच में 2-3 गुने उड़ा लेते हैं और ब्लैक में बेच देते हैं। तो जब तुम रिसीव करोगे तुमको तो उतना क्वांटिटी कम मिला, तो उसको चलो ठीक है लॉस बाय थेफ्ट हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन एनीवेज एबनॉर्मल लॉस, मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस के बीच में डिफरेंस इज ओनली विच डिफरेंस? एक्सपेक्टेशन डिफरेंस। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड, माय लॉस इज मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। यस और नो? कैन यू टेल मी माय आंसर? सर रादर माय क्वेश्चन इज स्टिल द सेम, मुझे क्या ढूंढना है? कॉस्ट पर यूनिट। आई विल आस्क पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, 23,04,000 को कितना यूनिट से डिवाइड करना चाहिए? इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई कैन नॉट फ्रेम। चलो ऑप्शन भी देता हूं, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, 12,000, 11,520, 11,380, ये 3 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी से 12,000? 12,000, if your answer is 12,000, it is obviously wrong because 12,000 कभी मेरे को मिलने वाला ही नहीं था, तो 12,000 से तो मैं कभी डिवाइड नहीं कर सकता हूं। ओके, नाउ बचे 2, 11,520 एंड 11,380। बोलो, कैन यू टेल मी ये दोनों में से हम किससे डिवाइड करेंगे? 11,000, हाउ मेनी से 11,380? 11,380 से तुम डिवाइड करेंगे, मतलब यू आर सजेस्टिंग दैट वी शुड डिवाइड बाय विच क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, कैन आई अज्यूम बाकी लोग 11,520 बोल रहे हैं, बिकॉज चौथा ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, तुमने रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए कितना स्पेंड किया? 23 लाख फॉर टू गेट हाउ मेनी यूनिट्स? टू गेट हाउ मेनी यूनिट्स? तुमने तो 11,520 के लिए खर्चा किया, वो बात अलग है कि तुमको मिला 11,380। Yes or no? Did you spend for that 480? Never, क्योंकि मुझे पता था वो 480 नहीं मिलने वाला है। But did you spend for that 140? Yes. Did you spend for that 140? Yes. तुमने उसके ऊपर खर्चा किया है, लेकिन वो तुमको मिला नहीं। That 140 is called as which loss? Okay.
मैं एक चीज बताऊंगा जिससे प्रूव हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। कितना था? 23 लाख। ओके, 23,04,000 डिवाइडेड बाय, मुझे खाली पहले 12,000 से डिवाइड करके बताओ कितना आता है। फर्स्ट डिवाइड बाय 12,000। आई वांट टू एक्सप्लेन वन पॉइंट। एग्जैक्ट बोला, वन एग्जैक्ट 192। ठीक है, 192। ओके, अब डिवाइड करो 23,04,000 बाय 11,520, एग्जैक्ट 200। नाउ डिवाइड 23,04,000 बाय 11,380। कितना था एग्जैक्ट बताओ? 202.56। ओके, बराबर है। जो लोग बोल रहे हैं 11,380 से डिवाइड करो, तो तुमको मिला 202 पॉइंट समथिंग। ओके, ये क्या है? व्हाट इज दिस 140? एबनॉर्मल लॉस। थियोरिटिकली हम लोग मान के चलते हैं दिस इज लॉस बाय फायर, तो थियोरिटिकली मान के चलते हैं। और ये भी मान के चलते हैं कि तुमने इसका इंश्योरेंस निकाला था, छोड़ो, क्योंकि इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट रहेगा तो वो भी तुम ऐड करोगे इसके अंदर, बरोबर है। अब तुम्हारा लॉस बाय फायर आ गया और तुमने इंश्योरेंस निकाला। कैन यू क्लेम और पुट अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी? ये इंश्योरेंस कंपनी के पास लॉस क्लेम करोगे कि नहीं करोगे? क्या क्लेम करोगे? मेरे को मेरा 140 यूनिट्स चाहिए। तुम्हारा गाड़ी जल गया, तुम गाड़ी मांगोगे? क्या मांगोगे? हाँ, मतलब क्या मांगोगे? कॉस्ट। लेकिन यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 140 बाय दिस, क्योंकि तुमने डिवाइड बाय 1380 किया है। नहीं समझ में? तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्या क्लेम करोगे? कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ये यूनिवर्सल रूल है। एबनॉर्मल लॉस विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। फाइनल अकाउंट्स किया है कभी तुमने? उसमें लॉस बाय फायर का कभी एडजस्टमेंट पड़ा है? मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं, तुम कंप्लीट करो। गुड्स, बीच में एक वर्ड होता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 were lost by fire. Goods costing, बराबर है। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 8,000। तुम एबनॉर्मल लॉस को किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट पे। चलो, लॉस बाय फायर नहीं है, बोलो मेरा एक्सपेक्टेशन है, डिड आई स्पेंड टू गेट दैट 140? यस। डिड आई स्पेंड टू गेट दैट 140? यस। आई एक्सपेक्टेड कि मुझे वो 140 मिलेगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो 140 मल्टीप्लाइड बाय, आई कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय 202 अगर तुम इसको 11,380 से डिवाइड कर रहे हो। अच्छा, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। कैन यू टेल मी, ये 23,04,000 का जो खर्चा है, ये 23,04,000 का खर्चा कौन सा यूनिट्स बेयर नहीं करेगा? नॉर्मल लॉस। वो बोलेगा मैं क्या के लिए बेयर करेगा, मैं तो पहले से खराब आने वाला था। ये तुमको पता था कि नहीं पता था? ओके, बोलो नेक्स्ट। 11,380 ये यूनिट्स इसका खर्चा बेयर करेगा कि नहीं करेगा? ये 11,380 ये यूनिट्स, ये 23,04,000 का खर्चा बेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 140 यूनिट्स ये खर्चा बेयर करेगा कि नहीं करेगा? ये लास्ट 5 मिनट से तो बदला। 140 यूनिट ये खर्चा बेयर करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। दैट इज व्हाई ये दोनों यूनिट्स इसका खर्चा बेयर करेगा, मतलब टोटल 11,520 इसका खर्चा बेयर करेगा। यस और नो? तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन विच इज द करेक्ट कैलकुलेशन, ये वाला, बराबर है। विच कैलकुलेशन इज इनकरेक्ट? ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है।
अच्छा, लेकिन ये कैलकुलेशन से हमको कुछ सीखने मिलता है। क्या सीखने मिलता है? ये लास्ट वाला कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। यू कैन नॉट डिवाइड इट बाय एक्चुअल क्वांटिटी, यू हैव टू डिवाइड इट बाय विच क्वांटिटी? एक्सपेक्टेड क्वांटिटी। ऐसा बोला जाता है, वी स्पेंड 23,04,000 एक्सपेक्टिंग टू गेट 11,520। हाँ, वो बात अलग है, तुमको 11,380 मिला। ओके, पॉइंट नंबर 1। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आगे भी जाके तुमको काम आएगा, तुमको ये अकाउंटिंग या एडवांस्ड अकाउंटिंग में भी काम आएगा, इसके लिए ध्यान से सुनो। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। आई विल फर्स्ट स्पीक अबाउट नॉर्मल लॉस। व्हाट इज नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट? नॉर्मल लॉस का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, नॉर्मल लॉस का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्मल लॉस के वजह से कॉस्ट पर यूनिट गेट्स इन्फ्लेटेड। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स बढ़ जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है? नॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये कॉस्टिंग में भी ट्रू है, अकाउंटिंग में भी ट्रू है, जाके देख लेना। व्हेन यू स्टडी AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, उसमें भी यही पॉइंट है। नॉर्मल लॉस अलग से कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होता है। नॉर्मल लॉस के वजह से होता क्या है? कॉस्ट पर यूनिट गेट्स इंक्रीज। ये मेरा एग्जांपल प्रूफ। नॉर्मल लॉस का समझ में आ गया ट्रीटमेंट? व्हाट इज नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट? No separate treatment. Normal loss is already considered while calculating what? Cost per unit. Suppose for example, थोड़ी देर के लिए मान लो, चलो ये रॉ मटेरियल नहीं है, मेरा फिनिश गुड्स है, एग्जांपल, ठीक है। सपोज मेरा सेलिंग प्राइस इज 250, मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 250। तो मैं 250 माइनस क्या करूं? 192 के 200, 200 मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 50। मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल लॉस कंसीडर हो गया ना, क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ गया, 192 का 200 हो गया। मतलब नॉर्मल लॉस का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं। एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट नंबर 1, लिसन केयरफुली। एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। और अगर मुझे यही क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करना है, आई विल वैल्यू 140 एट हाउ मच रुपीज? 200। तो मतलब मेरा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो जाएगा 140 इंटू 200। यस और नो? अब मैं ये एग्जाम्पल में एक पॉइंट ऐड करूंगा टू कंक्लूड द एंटायर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही एक चीज बाकी है। सपोज तुमको दिया गया है, आई विल ऐड इन द क्वेश्चन, there is something called as, और हमने देखा हुआ है कॉस्ट शीट में, स्क्रैप वैल्यू या स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज स्क्रैप वैल्यू इज रुपीज 10 पर यूनिट। व्हाट इज दिस? स्क्रैप वैल्यू 10 पर यूनिट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट्स विल बी स्क्रैप्ड? Which units will be scrapped? अच्छा, इजी कर देता हूं। नॉर्मल लॉस स्क्रैप करोगे कि एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप करोगे? ये जो 10 रुपया है वो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है कि एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है? दोनों का। लेकिन लॉस बाय थेफ्ट हुआ तो कैसे स्क्रैप करोगे एबनॉर्मल लॉस? तुमने बोला एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल इज लॉस बाय थेफ्ट। हाँ, तो कुछ नहीं दिया रहेगा तो कुछ नहीं दिया है ना यहां पे, तो इट इज अंडरस्टूड दैट यू हैव स्क्रैप्ड विच लॉस? एक्चुअल लॉस। तो हमेशा कौन सा लॉस को स्क्रैप करोगे? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस इज बोथ नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। मैंने तुमको एग्जांपल दिया, सपोज मैंने कंटेनर मंगाया, कंटेनर खोला, मैंने कितना यूनिट्स मंगाया था? 12,000। फिर मैंने एक इंसान को बिठाया, मतलब तेरा काम एक ही है, अच्छा यूनिट साइड में निकाल, बुरा यूनिट साइड में निकाल। वो साइड में निकाल देगा, कितना बुरा यूनिट्स निकाला रहेगा उसने?
620। अब उसको बोलेंगे इसमें से पहचान कौन एबनॉर्मल है कौन नॉर्मल, या उसको बोला जा इसको भंगार में बेच क्या, तो ये पूछेगा मेरे को कौन सा बेचू, नॉर्मल क्या एबनॉर्मल? Yes or no? No. It is expectation difference. I expected how many units to be lost, but actually कितना लॉस हुआ है? तो मुझे पूरा दोनों यूनिट स्क्रैप करना। ऑफ कोर्स कुछ नहीं बोला रहेगा तो, और कभी भी नहीं बोला रहेगा ये सब्जेक्ट में कि 140 इज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब एबनॉर्मल एग्जांपल्स हैं एबनॉर्मल लॉस के। ओके एनीवेज, चलो अभी मेरे को बताओ नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 480 इंटू 10। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 140 इंटू 10। चलो मल्टीप्लाई कितना होता है? 4800। इसको मल्टीप्लाई करो। ओके नाउ कैन यू टेल मी विल माय कॉस्ट पर यूनिट चेंज? विल माय कॉस्ट पर यूनिट चेंज? Yes, it will change. Okay, how it will change? पहले तो बताओ मेरे को ये जो कॉस्ट है 23,04,000, इसमें हम स्क्रैप वैल्यू ऐड करेंगे कि स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे? इट इज एज गुड एज मेरे को थोड़ा बहुत रिफंड मिल गया, मेरा कॉस्ट कम हो गया। ये सब चीज कॉस्ट शीट में हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट शीट में जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी हम लोग ने बोला लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैं स्क्रैप वैल्यू माइनस करेगा क्योंकि उतना मेरे को स्क्रैप वैल्यू रिफंड मिल गया। क्वेश्चन आई विल सबट्रैक्ट स्क्रैप वैल्यू ऑफ विच लॉस? नॉर्मल के एबनॉर्मल के? बोथ। बोथ इज रॉन्ग। डिनोमिनेटर में अगर तुम एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स माइनस नहीं कर रहे हो तो न्यूमरेटर में उसका स्क्रैप वैल्यू कहां से माइनस करोगे? अरे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एबनॉर्मल लॉस का फैक्टर ही कंसीडर नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया क्या? डिनोमिनेटर में तुमने कौन सा यूनिट्स माइनस किया है? ये 11,520 ढूंढने के लिए कौन सा यूनिट्स माइनस किया है? तो ऊपर उसका स्क्रैप वैल्यू माइनस करना चाहिए। तुमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज नहीं किया है? एबनॉर्मल लॉस, तो उसका स्क्रैप वैल्यू के मैं क्यों माइनस करूंगा? हियर आई विल सबट्रैक्ट स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओनली विच लॉस? नॉर्मल लॉस। अब कैलकुलेट करो कॉस्ट पर यूनिट। इट मे बी इन डेसिबल्स, ओके दैट्स नॉट प्रॉब्लम। 199 point, give me up to, you can say चलो 2 decimals पे राउंड ऑफ करो, 199.58। इधर तक समझ में? एबनॉर्मल लॉस का मैंने तुमको एक रूल बताया। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस का रूल? ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। हाउ मच इज कॉस्ट पर यूनिट? मल्टीप्लाई करो 140 इंटू 199.58। 27,940 141। ओके 27,941। ये कौन है? ये किसका कॉस्ट है? एबनॉर्मल लॉस, बरोबर है। तुम लोग है ना थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये लॉस बाय फायर ही है तो ही तुमको समझेगा लॉस बाय फायर है। ये लॉस बाय फायर है तो कितना यूनिट्स तुम्हारा जल गया? 140। ये 140 जाके इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। क्या क्लेम करोगे? मुझे मेरा 140 यूनिट्स दे दो। नहीं, मुझे तो यूनिट्स ही चाहिए। तो तुम कॉस्ट क्लेम करोगे उसका, तो कितना कॉस्ट क्लेम करोगे? 27,941 क्लेम करोगे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको सपोज फॉर एग्जांपल 25,000 रुपया क्लेम पास किया, बोले लो 25,000 रुपया। बोलो अभी तुम्हारा लॉस कितना? 2,941 is your loss. Everybody agrees? अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम किया तो आपका लॉस इतना होगा, लेकिन अभी इस बार इंश्योरेंस नहीं, मैं भंगार वाले को बेच रहा हूं। ये भंगार वाला मेरे को कितना दे रहा है सिर्फ, तो यहां पे मैं 1400 माइनस करूंगा। यस और नो? यहां पे मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है? भंगार वाला पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है? 1400 माइनस करो 26,540। दिस इज कॉल्ड एज net abnormal loss which will be debited to profit and loss account.
अकाउंट्स में भी यही करते हो. गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 है. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 8,000. पीएनएल में डेबिट कितना करोगे वो बताओ. दैट इज नेट एबनॉर्मल लॉस. तुम्हारा कॉस्ट कितना? 27,941. डिड यू स्पेंड फॉर दिस यूनिट्स? तुमने ये यूनिट्स के लिए खर्चा किया है. हाँ, कितना? 27,941. लेकिन ये यूनिट्स को तुमको भंगार में बेचना पड़ा, उसमें कितना मिला? तो तुम्हारा लॉस कितना? मॉरल ऑफ द स्टोरी, पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है इट ऑटोमेटिकली इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट. ये हो गया नॉर्मल लॉस. एब नॉर्मल लॉस में 2 पॉइंट याद रखना है. नंबर 1, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर लिखवा दूंगा. नंबर 1, abnormal loss universal rule should be valued at cost, and second, net abnormal loss should be debited to, हाँ, हम लोग के सब्जेक्ट में बोलेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. ये सब्जेक्ट में कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अलग बनता है. सो नेट एबनॉर्मल लॉस विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग. ठीक, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम.